Good morning class 10th. Today we will do rest of the question of exercise 6.3. Here question number 11. Is the point on the side CB produced on an isosceles triangle ABC? Okay. If AD is perpendicular on BC and EF is perpendicular on AC, so prove that ABD is similar to triangle ECF. So we need to prove ABD is similar to CEF. Okay, so how can we prove it? Here we can write in solution given AB is equal to AC, AD is perpendicular on BC and EF is perpendicular on AC. Okay, to prove triangle ABD is similar to triangle ECF. Proof. In triangle ABC, AB is equal to AC given. So therefore angle B is equal to angle C. Angles opposite to equal sides are equal. Okay. Now we can write here in triangle ABD and triangle ECF. Okay. Angle ADB is equal to angle EFC 90 degrees angle B is equal to angle C. Okay, angle B is equal to angle C shown above. So triangle ABD is similar to triangle ECF by angle similarity. Okay, I hope you understood. Now this is question number 12. Side AB and BC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to the side PQ, QR and median PM of triangle PQR. Show that triangle ABC is similar to triangle PQR. Here the given thing is AD is median, so we can write directly BD is equal to CD given and QM is equal to RM given. Why? Because median divide the sides, okay, in equal part, as well as median also. Okay, so look here. Now we can write to prove. Our target is to prove triangle ABC is similar to triangle PQR and the procedure. Now we can write in triangle ABC and triangle PQR. Okay. One more thing has given. Sides are in proportion. You can see here AB upon में PQ is equal to BC upon में QR is equal to AD upon में PM. Okay, because क्वेश्चन ने कहा था AB, BC and AD प्रोपोर्शनल है PQ, QR और PM के. सो ये तीन चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं. चलिए इनसे जो है इसको हम वर्कआउट करते हैं.
Here we can write in triangle ABC and triangle PQR, AB upon में PQ is equal to BC upon में QR is equal to AD upon में PM. Okay, AD upon में PM. Look here. If you will focus on this side, AD upon में PM, here I am going to erase it and I am going to write in triangle ABD and triangle PQM. Okay, PQM, ABD and PQM, ये चीज़ ऑलरेडी गिवन है. BC को आप क्या लिख सकते हैं? BC को आप जो है डिवाइड कर सकते हैं 2 के. ओके, क्योंकि BC AD से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है इक्वल पार्ट में. सो हियर वी कैन राइट AB अपॉन में PQ, तो BC का आधा क्या है भाई, BD अपॉन में QM इज इक्वल टू AD अपॉन में PM. ओके, तो हमने साइड्स को प्रोपोर्शनल दिखा दिया. देन वी कैन राइट ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQM बाय साइड क्राइटेरिया. ओके, सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q बाय CPST. ओके, नाउ वी विल choose the triangle ABC and triangle PQR. Again we can write AB upon में PQ is equal to BC upon में QR given, and angle B is equal to angle Q shown, अभी हम लोगों ने दिखाया. So therefore triangle ABC is similar to triangle PQR by side angle side similarity criteria. I hope you understood. Now this is question number 13. This question says D is a point on the side BC of a triangle ABC such that angle ADC is equal to angle BAC. Show that CA square is equal to CB into CD. Okay, so सबसे पहले हम लोग ट्राइंगल बना लेते हैं. से ट्राइंगल ABC, यहाँ पर कोई पॉइंट मान लेते हैं D. तो यहाँ दिया हुआ है गिवन एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC. ओके, मीन्स ये एंगल और ये एंगल बराबर है. और क्या प्रूव करना है? टू प्रूव CA का स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD. ओके, अब यहाँ पर आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझने लायक वो ये है कि आप इसे रफली कहीं सेपरेट करके चेक कर लें कि एक्चुअल आपको नीट क्या है. ओके, तो CA का स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ पर CA 2 टाइम्स लिखा गया है. आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर CB को इधर लेकर आइए. CA अपॉन में CB इज इक्वल टू CD अपॉन में CA. एक CA आप इधर भेज देंगे तो इससे एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि एक्चुअल आपको प्रूफ क्या करना है. ओके, तो CA इन दोनों कंडीशन में, इसका मतलब जो ट्राइंगल हम चुनेंगे उसमें CA होगा ही होगा. ओके, साथ में हमें क्या चाहिए, CD चाहिए और CB चाहिए. यानी हमारा ये 2 साइड और ये 2 साइड जो है कि हमें ऐसे ट्राइंगल को कंसिडर करना है कि ये आ जाए और ट्राइंगल सिमिलर भी हो. तो हमने क्या कर लेना है भाई, इन ट्राइंगल CAB एंड ट्राइंगल CDA. ओके, इन दोनों में एंगल C बराबर है, कॉमन है. A और D दिया हुआ है आपस में इक्वल, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे. ओके, तो यहाँ लिखेंगे
angle C is equal to angle C, or you can write completely angle ACB is equal to angle ACD common. Okay, and angle CAB or angle BAC is equal to angle ADC given. So therefore triangle CAB is similar to triangle CDA by angle similarity. Now you can write the corresponding side in ratio. We need CA, तो हम यहाँ पे CA कंसिडर करेंगे, तो जो यहाँ पे कंसिडर करेंगे वो यहाँ पर हो जाएगा. सो CA अपॉन में CD कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है. देन इसमें भी हमें CA चाहिए, तो CA की जगह यहाँ क्या है, CB है. ओके, CB तो इज़ इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, CB अपॉन में CA बाय CPST. ओके, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें आप, देन CA का स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD, हैंस प्रूव्ड. आई होप यू अंडरस्टूड. नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 14 and this question is a little bit important. Side AB, AC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to side PQ, PR and median PM of another triangle PQR. Show that triangle ABC is similar to triangle PQR. Okay. So first of all we will construct two triangle. दो triangle बना लेंगे हम लोग. Say A, B, C, P, Q, R. ओके, इसमें मीडियन दिया हुआ है AD एंड PM. मीडियन क्या करता है, दो बराबर भागों में बांट देता है. ओके, दिया क्या है उसको लिख लेते हैं सॉल्यूशन में. गिवन AB अपॉन में PQ इज इक्वल टू AC अपॉन में PR इज इक्वल टू AD अपॉन में PM. ओके, इन दोनों ट्राइंगल को अगर आपको सिमिलर प्रूव करना है तो आपको इसे क्राइटेरिया के फॉर्मेट में लाना होगा. तो अगर हम एंगल A और एंगल P को आपस में इक्वल दिखा देते हैं तो इसका मतलब ये ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा. बट क्वेश्चन इज़ दैट कि हाउ कैन वी शो दैट एंगल A इज़ इक्वल टू एंगल P. तो इसके लिए थोड़ा हम लोगों को कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. ओके, कंस्ट्रक्शन हमने क्या करना, AD को हम आगे तक बढ़ाएंगे, यहाँ तक बढ़ाएंगे कि AD और DE आपस में बराबर हो जाए. सिमिलरली हम PM को भी बढ़ाएंगे N तक, यहाँ तक बढ़ाएंगे कि ये भी आपस में बराबर हो जाए. ओके, और फिर इसको ज्वाइन करा देंगे. ओके, तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, AD इज प्रोड्यूस टू E. AD इज, या मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, AD इज इक्वल टू DE एंड PM इज इक्वल टू MN. ओके, ये हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन से ले लिया. अब आप थोड़ा अगर ध्यान दें तो ये एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल फॉर्मेट है और इसमें जो डायगोनल्स हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं D पर, और इंटरसेक्ट के बजाय आप बोल सकती है एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं. तो बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी किसकी होती है, पैरेललोग्राम की. पैरेललोग्राम में डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब ये एक पैरेललोग्राम बन गया. तो सॉल्यूशन प्रूफ में हम लिख सकते हैं, इन ट्राइंगल in quadrilateral ABEC and quadrilateral PQNR, diagonals bisect each other. So therefore
quadrilateral ABEC and quadrilateral PQNR are parallelogram. ओके, तो यहाँ से ये पैरेललोग्राम हो गया. अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है? अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाते हैं. ओके, तो चलिए करते हैं. नाउ वी कैन कंसीडर इक्वेशन 1. AB अपॉन में PQ इज इक्वल टू AD. ओके, अपॉन में PM is equal to AC upon में PR. So what about AC and PR? Because both the quadrilaterals are parallelogram, so in parallelogram opposite sides are equal. So we can replace AC and PR by B and QN. Okay, so here we can write AB upon में PQ is equal to AD upon में PM इज इक्वल टू BE अपॉन में QN. रीज़न दिखा देंगे. प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम सच दैट AC इज इक्वल टू BE एंड PR इज इक्वल टू QN. ओके, तो आपने साइड को जो है प्रोपोर्शनल दिखा दिया और AD में क्या करना था आपको? 2 से मल्टीप्लाई. ओके, नाउ AB अपॉन में PQ, अभी आपने AD में 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये पूरा क्या बन गया? AE, क्योंकि ये दोनों पोर्शन आपस में इक्वल हमने बाई कंस्ट्रक्शन लिए हैं. सो ये AE फॉर्मेट में हो गया. PM क्या बन जाएगा? PN इज इक्वल टू BE अपॉन में QN. तो यहाँ से नया ट्राइंगल फॉर्म हो गया. कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQN. ओके, बाय साइड 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 सिमिलैरिटी. नाउ you can write here angle 1, angle 2, angle 3, angle 4. Okay, now you can write, because you have shown both the triangle are similar, so angle 1 should be equal to angle 2. Now we can write angle 1 is equal to angle 2 by CPST. So similarly angle 3 is also equal to angle 4. ओके, राइट हैंड साइड का भी हम इसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो ये भी बराबर हो जाएगा इसके. अभी क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड कर देंगे. ऐड इन इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, एडिंग 2 एंड 3. तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4, और 1 3 मिलकर क्या बन रहा है भाई? एंगल A बराबर एंगल P. ओके, से इक्वेशन 4. नाउ वी कैन ईजली प्रूव इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR. ओके, AB अपॉन में PQ इज इक्वल टू AC अपॉन में PR, ये गिवन है. एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल P हमने अभी प्रूव्ड किया. ओके, सो देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड. नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 15. A vertical pole of length 6 meter cast a shadow 4 meter long on the ground. ओके, तो कोई पोल है जिसे हम बना लेते हैं. ये पोल है जो कि 4 मीटर और वर्टिकल पोल की जो लेंथ है वो 6 मीटर है. ओके, नाम दे देते हैं ABC. वर्टिकल है तो इसका मतलब ये 90 डिग्री होगा. और क्या है? एट द सेम टाइम ए टावर का शेडो 28 मीटर. इसी और एक टावर है जो 28 मीटर शेडो कास्ट कर रहा है, जिसे हम नाम दे देते हैं PQR. 28 मीटर शेडो, ये भी वर्टिकल है, ये टावर है.
ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें इस टावर की हाइट पता करनी है। नाउ गिवन height of pole is equal to 6 meter, okay, or we can also write in the term of side AB is equal to 6 meter, BC is equal to 4 meter, and RQ or QR is equal to 28 meter. Okay, to find PQ, length of PQ. Okay, so look here, how can we find? We can write here in proof, in triangle ABC and triangle PQR, angle B is equal to angle Q, 90 degree each, and angle A is equal to angle P also. Okay, why? बिकॉज सूरज एक समय में एक ही जैसा एंगल जो है कि फॉर्म करेगा इसके साथ। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सन एंगल एलिवेशन बाय सन एट सेम टाइम। ओके, एक ही समय पे सूरज द्वारा एक ही एंगल को फॉर्म किया जाएगा। सो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR बाय एंगल सिमिलैरिटी। तो जो हमें ज़रूरत है उसको हम रेशियो में लिख लेंगे। सो AB अपॉन में PQ इज इक्वल टू BC अपॉन में QR। ओके, बट वी नीड टू फाइंड AB, तो AB को हम ऊपर लेकर आएंगे, सॉरी PQ। सो वी कैन राइट हियर PQ इज इक्वल टू BC AB इंटू QR अपॉन में BC। ओके, तो व्हाट इज AB? 6 इंटू QR 28 अपॉन में BC 4। ओके, so here we can cancel it, 4 7 जा 28 and 7 6 जा 42 meter. Okay, 42 meter height of the tower. I hope you understood, and try to do question number 16 of this exercise. Okay, thank you for watching.